Let's see the introductory aspects of Drugs and Cosmetics Act 1940 and rules thereunder 1945. In last video we have seen schedules in two videos, schedules to the act and schedules to the rules we have completed. Now we will see definitions and objectives of Drugs and Cosmetics Acts. So let's see. After watching this video, the learning outcome is the learner will be able to explain the objectives of this act and various terms, definitions under Drugs and Cosmetics Act 1940. So let's see what are the objectives. The first that already we have discussed in the last video, that is to regulate the import, manufacture, distribution of sales of drugs and cosmetics. जो भी चीजें हैं ड्रग्स कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, इट मे बी इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, to control them all over India is the first and the foremost objective of this act. Next is to control over the manufacture, distribution and sale of Ayurvedic, Siddha, Unani and homeopathic drugs. So there is a separate provision to control all these manufacturing and sales, distributory aspects, import aspects of Ayurvedic, Siddha, Unani and homeopathic drugs. There is a separate provision apart from provision to drugs and cosmetics. Next, this act also provides the establishment of Drug Technical Advisory Board that we call DTAB, and to advise the government on technical matter, it also provides Drug Consultative Committee that we call DCC to solve and to advise any technical matter arising out of administration of this act. इस एक्ट की जो कुछ भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो इम्प्लीमेंट करते वक्त, करते समय अगर कोई दिक्कत आ जाए, अगर कोई परेशानी आए, अगर कोई टेक्निकल इशू आए, तो हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू ओवरकम इट, इसके लिए ये कैसे हम पार कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए सलाह मसलत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. सो this is also objective to provide the establishment of these two advisory boards. This act provides the establishment of both advisory boards as well as a licensing authority and analytical bodies. So these are the outcomes. Actually, these objectives of DNC Act are outcomes of Drug Enquiry Committee, which was arranged in 1931. So, जो कुछ भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी, उनका ये आउटकम है कि ड्रग कॉस्मेटिक के लिए अलग से रेगुलेशन कंट्रोल हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए अलग से कुछ कंट्रोल एस्पेक्ट्स हो, एडवाइजरी बोर्ड्स हो, एंड ना कि एडवाइजरी बट ऑल्सो एनालिटिकल बोर्ड्स, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये सब हो. ये किसके आउटकम्स है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी की. ये रहे ऑब्जेक्टिव्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के. Now we will see the definitions. Into that, the first definition is drug. What is drug according to Drug and Cosmetic Act 1940? So all medicines for internal or external use. जो भी बोल्ड किए लेटर्स हमें वो ध्यान में रखने हैं. ऐसे सभी मेडिसिन जो कि इंटरनली मतलब कि ओरली लिए जाते हैं या फिर एक्सटर्नली मतलब कि स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं या फिर कुछ और रूट से यानी कि पैरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग और एनिमल, मनुष्य के लिए या प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए. एंड ऑल सब्सटेंसेस, ऐसे सभी सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जिसके लिए यूज किए जाते हैं फॉर इन द डायग्नोसिस, मतलब कि जो भी डिसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस. ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन, मतलब कि होने से पहले ही कुछ दवाइयाँ देना या होने न हो जाए इसलिए कुछ precaution लेना, that is called mitigation, prevention of any disease or disorder in human being or animal. So हम दोनों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, दोनों का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, मनुष्य और पशु. इंक्लूडिंग प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी. इसमें और भी क्या इंक्लूडेड है? ऐसे ही प्रिपरेशन जो कि बॉडी पे अप्लाई की जाती है, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज. जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांड है ओडोमॉस है या फिर गुड नाइट है, मैक्सो है. इनके जो क्रीम रहते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, ये भी ड्रग्स माने जाएंगे, ड्रग्स समझे जाएंगे अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट, सच सब्सटेंसेस अदर देन फूड. फूड के अलावा मतलब जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं एज अ नीड, जो भी हम खाना खाते हैं, तो उसके अलावा अगर कुछ सब्सटेंस यूज किया जाता है टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और एनी फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी,
हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर या फंक्शन अगर चेंज करने या फिर उन पर कुछ असर लाना है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड, किसके लिए यूज किए जाते हैं वो? डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन और इंसेक्ट्स, कीटक या वर्मिन, जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं ना, WRM वर्म्स, उनको किल करना है, उनको अगर डिस्ट्रॉय करना है, और इसके लिए अगर कुछ सब्सटेंस यूज किए जाते हैं which may cause disease in human being और animal। पशुओं के द्वारा इंसेक्ट खाए जाते हैं तो अगर किल किए होने जाने चाहिए क्योंकि वो उनके हेल्थ पर असर कर सकते हैं। तो उन्हें किल करने के लिए, या मनुष्य में वर्म्स रहते हैं, उन्हें अगर हम किल करते हैं तो हमारी सेहत ठीक रहती है। सो इनके डिस्ट्रक्शन के लिए अगर कुछ सब्सटेंसेस हम खाते हैं सिवाय फूड, तो हम उसे क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग इंक्लूडिंग एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। सो अगर ये ड्रग का कंपोनेंट भी है, फॉर एग्जांपल जिलेटिन कैप्सूल, ये जो कैप्सूल शेल है ये भी क्या कहलाएगा? ड्रग कहलाएगा। नेक्स्ट, सच डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, ऐसे कोई भी डिवाइस जो इंटरनल और एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डिसीज के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ डिसीज आइडेंटिफाई करना है, उनका डायग्नोसिस करना है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 की टेस्ट रहती है, स्वैब टेस्ट रहती है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उन्हें भी हम DNC अकॉर्डिंग ड्रग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट की जाती है, स्किन टेस्ट की जाती है, तो उसे भी हम ड्रग कहलाएंगे। ये अस्थमा का डिवाइस है, जो अस्थमा का अटैक आए तो ट्रीटमेंट के हिसाब, ट्रीटमेंट एज अ बेस यूज किए जाते हैं, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। सिरिंज, नीडल, so it is used to administer the dosage form parenterally, so they are also called drug according to this act। कुछ पिक्चर्स इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, that is the definition of drug। Next is the Ayurvedic, Siddha and Unani drugs। So it includes medicines intended for external और internal use। So हम ये अगर कोई ड्रग आता है तो ये टैगलाइन हमेशा रहेगी फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। सेकेंड टैगलाइन रहेगी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। और थर्ड रहेगी ह्यूमन बीइंग, फॉर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। अब डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चर्ड, these Ayurvedic, Siddha, Unani drugs manufactured in accordance with the formulae described in authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani system of medicine specified in first schedule। फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट क्या है? लिस्ट ऑफ ऑथोरेटिव बुक्स इन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो इन बुक्स के दिए गए फॉर्मूले के अनुसार अगर कुछ प्रिपरेशंस मैन्युफैक्चर किए हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? हम आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स कहेंगे। नेक्स्ट इज न्यू ड्रग। तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है न्यू ड्रग, a new substance of chemical, biological और biotechnological origin in bulk और prepared dosage form। ऐसा नया सब्सटेंस जो कि मे बी केमिकल हो ओरिजिन, मे बी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो उसके, और मे बी बायोटेक्नोलॉजिकल, मतलब माइक्रो और बायो, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। बल्क फॉर्म में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर यूनिक डोसेज फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। किसके लिए? फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल। जो हमने देखा ये हमारी टैगलाइन फिक्स है अगर ड्रग है तो। फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? विच एक्सेप्ट ड्यूरिंग लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कंट्री टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। मतलब कि ये प्रिपरेशन लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा कहीं भी देश भर में यूज नहीं किए गए टू द सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, मतलब लक्षणीय तौर पर, बहुत ज्यादा तौर पर ये यूज नहीं किए गए, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल पे यूज किए गए हैं। और विच except during local clinical trials has not been recognized in the country, और ये देश भर में अब तक recognized मतलब अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है as effective and safe for the proposed claim। परिपूर्ण है और सुरक्षित है जो भी इन्होंने क्लेम बताए गए हैं कि इन डिसीज को ये कवर करेंगे, इसके लिए अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? न्यू ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट, ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड, ये पहले से अप्रूव्ड है बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर सर्टन क्लेम्स, कुछ और क्लेम के लिए अप्रूव्ड है, विच इज नाउ प्रपोज टू बी मार्केटेड विथ मॉडिफाइड और न्यू क्लेम। और ये अभी हम मार्केट कर रहे हैं या फिर हम प्रपोज कर रहे हैं कि ये नए क्लेम्स है इसमें, या फिर जो भी पुराने क्लेम है वो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब जो भी हम बता रहे हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ नया बता रहे हैं।
इंक्लूडिंग इंडिकेशन, डोसेज फॉर्म, डोज एक्सेट्रा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, न्यू ड्रग कहेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर रिपीट करनी होती है। नेक्स्ट, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, जिसे हम एफडीसी कहते हैं, ऑफ 2 और मोर ड्रग्स, 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स का ये कॉम्बिनेशन है शायद, जिसे हम न्यू ड्रग कहेंगे। इंडिविजुअली अप्रूव्ड अर्लियर, ये पहले से अगर इंडिविजुअली यूज किए गए हैं और उसके लिए उन्हें अप्रूवल भी है, मान्यता भी है या फिर अधिकृत है। फॉर सर्टन क्लेम्स, इन्होंने कुछ क्लेम ऑलरेडी क्या किए हैं, क्लियर किए या फिर अप्रूव किए हैं, विच आर नाउ प्रपोज टू बी कंबाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये इंडिविजुअली अप्रूव्ड ड्रग अब कंबाइंड फॉर्म में लाए जाने वाले हैं इन अ रेशो, और इफ द रेशो ऑफ इंग्रेडिएंट इज ऑलरेडी मार्केटेड। अगर ये कुछ फिक्स रेशो है या फिर रेशो भी हमने इस वक्त बदला है, प्रपोज टू बी चेंज विथ सर्टन क्लेम्स, कुछ क्लेम्स हमने लगाए हैं, कुछ हम दावा कर रहे हैं कि कुछ ये परेशानी, ये डिसीज कम हो सकता है या टोटली प्रिवेंट किया जा सकता है, विथ इंडिकेशंस, डोसेज फॉर्म, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। सो अगर ऐसी बात हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं कर रहे हैं तो ये न्यू ड्रग कहलाएगा। तो कब तक ये न्यू ड्रग कहलाता है? इट शैल बी कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ड्रग फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट अप्रूवल। पहला अप्रूवल मिलने से 4 साल तक ये नया ड्रग कहलाता है और इट्स इंक्लूजन इन द आईपी। और 4 साल के पहले अगर ये इंडियन फार्माकोपिया में इंक्लूड किया जाता है, तब तक जो भी अर्लियर हो, अगर आईपी में पहले इंक्लूड किया जाता है 4 साल होने से पहले, तो तब तक उसे न्यू ड्रग कहेंगे। और अगर आईपी इंक्लूड अभी तक किया नहीं है और 4 साल हो गए तो तब तक उसे न्यू ड्रग कहेंगे। उसके बाद ये न्यू ड्रग का स्टेटस इससे हट जाएगा, ये सिर्फ ड्रग कहलाएगा। So that was definition of new drug. Next is the misbranded. What is miss? Miss means गलत, branded मतलब गलत ब्रांड है या गलत ब्रांड से हम कुछ कर रहे हैं, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। Drug shall be deemed to be misbranded. See picture से एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सेम डिजाइन या सेम कुछ मिलते जुलते या सिमिलर लुक लाइक साउंड अलाइक ऐसे अगर मेडिकामेंट्स बनते हैं मार्केट में किसी और ब्रांड की पब्लिसिटी के अंडर बेचे जाते हैं तो इसे हम मिस ब्रांडेड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश्ड। अगर हम एक ऐसा ब्रांड, ऐसा ड्रग प्रिपरेशन बनाते हैं जिसका कलर, जिसका कोट या जो पाउडर्ड है या पॉलिश्ड है, ऐसा बनाते हैं दैट द डैमेज इज कंसील्ड, उसका जो भी डैमेज है या डिफेक्ट है वो कंसील होता है, मतलब वो पूरी तरह से ढक जाता है। और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेराप्यूटिक वैल्यू, या फिर हम ऐसे उसे कोट या पाउडर या पॉलिश या कलर करते हैं कि उसका लुक है वो पहले से ज्यादा अच्छा लगे और उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू भी अच्छी रहे, ज्यादा रहे देन इट इज रियली इज। पहले है उसे अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें और उसके लिए अगर हम उसे कुछ डेकोरेट करें तो उसे मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे। इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, दिए गए मैनर्स में उसके मुताबिक अगर वो लेबल्ड नहीं है, और इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग अकम्पनिंग मतलब ड्रग के साथ जुड़ी हुई चीजें क्या है, कंटेनर है, कंटेनर का लेबल है या फिर सेकेंडरी लेबल है, पैकेजिंग कंडीशंस जो है वो है। एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग को रिलेट करने वाली कुछ भी चीज हो, बेयर्स एंड स्टेटमेंट और डिजाइन, वो धारण करती है या फिर वो लेबल कहती है क्या स्टेटमेंट ऐसा, या फिर उसका डिजाइन या फिर वो डिवाइस उसका डिजाइन या उसका मेक विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम, जो कि एक गलत क्लेम लगाती है, गलत दावा करती है फॉर द ड्रग, और विच इज अ फॉल्स और मिसलीडिंग, वो हमें गलत दिशा में लेके जाती है इन एनी पर्टिकुलर। कैसे? देखिए पिक्चर, ये सेम पैकेजिंग मटेरियल लग रहा है, सेम डिजाइन लग रहा है, फर्क देखिए कलर में थोड़ा सा फर्क है, ये ऑथेंटिक है, ये ओरिजिनल है, ये फेक है, मतलब ये मिस ब्रांडेड है। सो इसके ये ब्रांड है, इसके पब्लिसिटी के अंडर, इसके शैडो में हम हमारा कुछ सब स्टैंडर्ड या इंफीरियर क्वालिटी का बेच रहे हैं। इसका जो ब्रांड का जो पब्लिसिटी है वो यूटिलाइज करके हम हमारा सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी का बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मिस ब्रांडेड कहलाएगा। सी सेम लेबल, सेम कंटेनर और थोड़ा बहुत फर्क करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। तो ये रही डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग की। अब आगे डेफिनेशन है एडल्ट्रेटेड ड्रग की। So adulterated drug, see the image. A drug shall be deemed to be adulterated if it consists in whole or in part
of any filthy, putrid or decomposed substance. See in the image, the claw buds are there. Actually, the genuine or authentic drug of claw is not the mother claw, but it's claw bud. So here, partially or wholly, completely, maybe some saturated or some exhausted claw, mother claw can be included as adulteration in the claw buds. So we can see in the image, if it is containing whole or in part any filthy, putrid or decomposed substance means that is of waste or nothing use. Filthy or putrid means some fibrous material or which is not the genuine one. If it has been prepared, packed or stored under insanitary condition, whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to the health. So अगर वो ऐसी तरह से बनाया गया हो, पैक किया गया हो या फिर रखा गया हो जो कि असुरक्षित है, जो पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसे प्रीमाइसेस में अगर वो बनाया गया हो, पैक किया गया हो या फिर रखा गया हो, वेयर कंटामिनेशन इज देयर, फिल्थी या प्यूट्रेड कंटामिनेशन हुआ है और दैट इज इंजूरियस टू द हेल्थ, और ऐसी चीज़ें अगर हम ड्रग के फॉर्म में लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसे क्या कहेंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे. If its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substance, अगर उसका कंटेनर जिसमें हम ड्रग रखते हैं वो पार्शियली या फुल्ली ऐसे कोई पॉइजनस सब्सटेंस से और डिलेटोरियस सब्सटेंस से बना हो, फॉर एग्जांपल लीड रहता है या फिर आर्सेनिक रहता है या मर्क्यूरी रहता है, सो ऐसे मटेरियल है जो सेहत के लिए हानिकारक है, कार्सिनोजेनिक है, विच में रेंडर द कंटेंट इंजूरियस टू द हेल्थ, तब भी वो हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है एडल्ट्रेशन किसकी वजह से आई है. ड्रग में है तो हम ड्रग को एडल्ट्रेटेड कहेंगे. मे बी इसका रीज़न खराब क्वालिटी का कंटेनर हो सकता है. ड्रग ओरिजिनल है, जेन्यून है, स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कंटेनर हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज़ करें और उसकी वजह से अगर क्वालिटी सफ़र हो रही है ड्रग की, तब भी हम उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे. इफ़ इट बियर्स और कंटेन्स, अगर वो धारण करता है, मतलब कि वो प्रिपरेशन या फिर उसका कंटेनर अगर कुछ ऐसा होल्ड करता है या फिर धारण करता है, कलर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड विच में बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कलरिंग ओनली. शेड्यूल क्यू हमें लिस्ट ऑफ कलर्स बताता है जो फूड ड्रग अथॉरिटी ने हमें क्या किया है, अप्रूव किया है कि उनमें से उन्होंने दी हुई लिस्ट में से हमें कुछ कलर यूज़ करने हैं. उसके अलावा अगर हम कुछ और कलर यूज़ करते हैं जस्ट फॉर कलरिंग और प्रिपरेशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग. इफ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजूरियस टू द हेल्थ, अगर प्रिपरेशन में कुछ ऐसे हानिकारक या ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस है जो भी पॉइजनस कहते हैं हम उसे, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और इफ एनी सब्सटेंस मिक्सड विथ सो एज टू रेंडर इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, अगर ऐसा कोई हम सब्सटेंस मिक्स भी करते हैं जिसकी वजह से प्रिपरेशन की क्वालिटी या फिर उसकी स्ट्रेंथ, मतलब कि उसका जो परसेंटेज प्यूरिटी है वो अगर सफ़र होता है, वो अफेक्ट होता है, तब भी हम क्या कहेंगे, उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे. नेक्स्ट इज स्पूरियस ड्रग. सो क्या है स्पूरियस ड्रग, मतलब कि जो हम दे रहे हैं एक्चुअली वो इनसाइड अंदर में वो नहीं है, कुछ और है या किसी और के नाम से कुछ और हम दे रहे हैं. सी दिस इज ऑल्सो इमेज. ये लगता तो एक ही है एवास्टेटिन, लेकिन इसके कंटेंट में और इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फ़र्क है. बीइंग अ पेशेंट हम कहाँ पे धोखा खाते हैं, इसका ब्रांड, इसका लेबल, इसका डिज़ाइन एक जैसा दिखता है और इसी के अंदर क्या होता है, धोखाधड़ी होती है और हम कुछ गलत या इन्फेरियर क्वालिटी के प्रिपरेशंस हम खरीदते हैं जो कि स्पूरियस है, जिसका मतलब है बनावट या फिर हम फेक कहते हैं, फेक मेडिसिन्स. ओके, जो इम्पोर्टेड है अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, कुछ और नाम से. बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड है जो इम्पोर्टेड बुलाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली यही कहीं पे तो बनते हैं और उनका नाम से कुछ 99% मैच हो ऐसे वो बनाते हैं, उसका मेक ऐसा बनाते हैं, उसका फीचर्स ऐसे बनाते हैं कि हमें लगता है ये सच में ब्रांडेड है और हम सस्ते दाम में इसे खरीदते हैं.
फॉर एग्जांपल घड़ियों के ब्रांड्स है, रोलेक्स है, फास्ट ट्रैक है। सो बहुत सारे ऐसे शूज़ कंपनी या क्लॉथ कंपनी के ब्रांड्स है। सो उनके स्पेलिंग में से, उनके डिज़ाइन में से कुछ तो 1-8% डिफरेंस रखते हैं और बाकी सब सेम रहते हैं, ताकि हम लोग आसानी से धोखा खा जाए और स्पूरियस ड्रग या स्पूरियस प्रोडक्ट खरीदे। सो किसी और नाम से इंपोर्ट किया है लेकिन है कुछ और, तो इसे हम स्पूरियस कहेंगे। मतलब कि हम मिसब्रांडेड या अडल्ट्रेटेड में एटलीस्ट पार्शियली हम धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन स्पूरियस में तो हम पूरा का पूरा ड्रग या पूरी की पूरी प्रिपरेशन ही हम क्या कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। विच इज़ एन इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल या कॉपी ऑफ और अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनादर ड्रग। एक ड्रग का सब्स्टिट्यूट है और वो हम ओरिजिनल ड्रग कह के दे रहे हैं, तो ये क्या है, स्पूरियस है। और रिजेंबल्स टू अनादर ड्रग मतलब लुक लाइक, सेम, लुक लाइक, साउंड अलाइक, ऐसे कि बहुत सारी साम्यता है अनादर ड्रग में और हम उसी के नाम से ये बेच रहे, बना रहे। इन अ मैनर टू डिसीव और बियर अपॉन इट्स लेबल। हम ऐसी तरह से उसे पेश कर रहे हैं, कंटेनर या फिर उसका लेबल। द नेम ऑफ द अदर ड्रग अनलेस प्लेनली और कॉन्स्पिक्यूअसली मार्क्ड। अगर ऐसा सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो हमें वो प्लेनली और कॉन्स्पिक्यूअसली मार्क करना है। हमारे जो लेबल है, कंटेनर है, उस पर हमें पूरी तरह से क्लियरली रीडेबल हो, ऐसे इंक से हमें वो प्रिंट करना है। अगर नहीं करते तो इसका मतलब हम पर्पसफुली ये क्या कर रहे हैं, स्पूरियस बना रहे हैं। सो एज टू रिवील इट्स ट्रू कैरेक्टर। अगर हम क्लियरली वो इंडिकेट नहीं कर रहे ट्रू कैरेक्टर, इसका मतलब हम स्पूरियस की तरफ जाते हैं। इट्स लैक ऑफ आइडेंटिटी विद सच अदर ड्रग। क्योंकि अगर हम कॉन्स्पिक्यूअसली या फिर डिस्टिंग्विशली हम नहीं बताते कि हम में क्या है, हम अलग ब्रांड है, इसका मतलब हम हमारी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। वी आर लैकिंग आवर आइडेंटिटी विद सच अदर ड्रग। और क्या डेफिनेशन है, द लेबल और कंटेनर ऑफ विच बेयर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी। अगर उसका लेबल या फिर कंटेनर ऐसे कुछ चीजें धारण करता है, इंडिविजुअली या फिर कंपनी की कुछ चीजें, परपोर्टिंग मतलब कि हम ऐसा आभास कर रहे हैं, हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, ऐसे बहुत बड़े ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो ऐसा हम प्रिटेंड कर रहे हैं, विच इंडिविजुअल और कंपनी इज फिक्सिशियस और डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि अस्तित्व में वो नहीं है या फिर कुछ ऐसी मिलती जुलती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर एक ब्रांड हम ले सिप्ला और उसका कुछ ए या ई हम चेंज करें तो हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही जैसे ओरिजिनल सिप्ला है, और हम क्या कर रहे हैं, फिक्सिशियस बना रहे हैं, मतलब उससे मिलते जुलते बना रहे हैं। या फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब है ही नहीं है और हम बता रहे हैं ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंडर हम आते हैं, ऐसा अगर हम बता रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, स्पूरियस ड्रग कहेंगे। विच हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट। अगर वो पूरी तरह से या पार्शियली पूरी तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अनादर ड्रग से, तो उसे हम स्पूरियस कहेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से विड्रॉ कर रहे हैं और कुछ और दे रहे हैं। विच पर्पोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट। हम ऐसा आभास निर्माण कर रहे हैं, हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये ऐसे मैन्युफैक्चरर का है, एक्चुअली उसका है ही नहीं है, और हम कुछ गलत या फिर हम कुछ झूठी बात बना रहे हैं। So that is called spurious drug. Next definition, cosmetic, जो कि बहुत important है, ये बहुत बार पूछी जाती है। cosmetic की definition 2 या 3 मार्क के लिए। It means any article, ऐसा कोई भी article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduction into or applied to any part of human body. ये animals के लिए नहीं है, ये हमें difference मेंशन रखना, याद रखना है। इट मीन्स एनी आर्टिकल, ऐसा कोई भी आर्टिकल या उपकरण इंटेंडेड टू बी रब्ड, जो स्किन पे रब किया जाता है, मतलब विथ फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। पोर्ड मतलब कि वो पूरी तरह से, जैसे हम डालते हैं किसी लिक्विड अगर कैविटी में डालते हैं वैसे हम कहते हैं पोर करते हैं। स्प्रिंकल मतलब कि हम जैसे फेस पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, परफोरेशन थ्रू बाहर आती है तो उसे स्प्रिंकल कहते हैं। स्प्रेड ऑन जैसे कि हम परफ्यूम या डिओ यूज करते हैं, दैट इज स्प्रेड। और इंट्रोडक्शन इनटू या फिर किसी बॉडी कैविटी में वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इनटू या फिर और अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या किसी भी ह्यूमन बॉडी पार्ट पर हम अगर वो अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, किसके लिए,
ये आर्टिकल किस लिए यूज करें हम? क्लींजिंग, मतलब जस्ट हमें वो साफ करना है जो भी हमारा बॉडी पार्ट है। ब्यूटीफाइंग, मतलब हमें और अधिक वो क्या करना है? सुंदर बनाना है। अट्रैक्टिवनेस, वो हमें और भी अट्रैक्टिव बनाना है, या फिर अल्टरिंग द अपीयरेंस, हमारा अपीयरेंस हमें अल्टर करना है, मतलब चेंज करना है, पहले से बेहतर बनाना है। इंक्लूड्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक, या फिर कॉस्मेटिक का कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कंपोनेंट के नाम से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक ब्रश या पाउडर पफ, ये भी क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक कहलाएगा। मतलब वो यूज करने के लिए यूज करने वाले आर्टिकल या फिर वो खुद कॉस्मेटिक, उसे हम क्या कहेंगे? ऑल ओवर द कंसेप्ट इज नोन एज कॉस्मेटिक। सो आई थिंक वी आर क्लियर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्योंकि रोजाना एटलीस्ट 3-4 कॉस्मेटिक तो हम यूज करते ही हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक. It shall be deemed to be misbranded if it contains a color which is not prescribed. शेड्यूल क्यू के हिसाब से जो दिए है कलर, उसके अलावा कुछ और कलर यूज किया है जो कि नहीं दिए गए हैं, then it is misbranded. If it is not labeled in the prescribed manner, कॉस्मेटिक कैसे लेबल हो ये भी DNC ने बताया है। अगर उसके हिसाब से नहीं है लेबल तो it will be said misbranded cosmetic. The label or container or anything accompanying the cosmetic, कॉस्मेटिक का लेबल या फिर कॉस्मेटिक का कंटेनर या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी, make any false or misleading claim, अगर कुछ गलत जानकारी या फिर गलत दिशा में कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उस कॉस्मेटिक को हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक कहेंगे। नेक्स्ट इज स्पूरियस कॉस्मेटिक। देखिए, ऐसा प्लेन ब्रांड हम करते हैं और उस पर किसी और का अगर हम लेबल लगाते हैं जो कि एक ब्रांड से मिलता जुलता हो, फिक्सिशियस हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? फेक या बनावट या स्पूरियस कॉस्मेटिक। सो इट शुड बी डीम्ड टू बी स्पूरियस इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर। किसी और ब्रांड का नाम धारण करते हुए अगर हम इंपोर्ट करते हैं और खुद का बेच रहे हैं तो इसे हम स्पूरियस कॉस्मेटिक कहेंगे। इफ इट इज एन इमिटेशन, मतलब नकल, कॉपी, और इज अ सब्स्टिट्यूट, पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट किया गया है, फॉर अनदर कॉस्मेटिक्स, किसी और के लिए ये कॉस्मेटिक अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और रिजेंबल्स अनदर कॉस्मेटिक, या फिर किसी और कॉस्मेटिक से हमारा बहुत साधर्म्य है, बहुत सिमिलैरिटीज है, in a manner likely to deceive or bears upon it or its label or container, उसका लेबल सेम है या फिर कंटेनर सेम है या फिर उसमें से जो भी एक्सटर्नल फीचर्स है वो सेम है of another cosmetic unless it is plainly and conspicuously marked, वो पूरी तरह से अगर हम बोल्ड या डार्क या क्लियर डिस्टिंग्विश लेटर में अगर हम नहीं रिवील करते इट्स ट्रू कैरेक्टर एंड इट्स लैक ऑफ आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी अगर हम छुपा रहे हैं विथ सच अदर कॉस्मेटिक, हमारा जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है उसे हम छुपा रहे हैं, पर्पसफुली हम वो मेंशन नहीं कर रहे हैं या फिर डिस्टिंग्विश डार्क लेटर में नहीं लिख रहे हैं लेबल पर, इसका मतलब हम स्पूरियस कॉस्मेटिक दे रहे हैं। ये स्पूरियस ड्रग से मिलती जुलती डेफिनेशन है, सिर्फ ड्रग की जगह में क्या रिप्लेस करना है? वर्ड कॉस्मेटिक रिप्लेस करना है। द लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, अगर वो लेबल या कंटेनर ऐसे इंडिविजुअल कंपनी का नाम ले रही है, परपोर्टिंग टू बी मैन्युफैक्चरर, जिससे ये पता चल रहा है, जिससे ये आभास हो रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ द कॉस्मेटिक विच इज फिक्सिशियस और डज नॉट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं, या फिर सिर्फ ये क्या है, ये एक संजोग है कि ये और मैन्युफैक्चरर है, वो और है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हम वही है, पर्पजफुली, दैट इज कॉल्ड स्पूरियस। It purports to be the product of manufacturer of whom it is not truly a product. हम बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली, जो कि अब फेयर ग्लो या फिर ग्लो होने वाला है, ग्लो एंड लवली होने वाला है, या फिर कुछ और फेयर ग्लो या फिर पॉन्ड्स या फिर निविया, अगर हमारा नाम NIVES की जगह हम NEVA बना रहे हैं तो हम क्या करें? पर्पजफुली उस ब्रांड के अंदर हमारा माल क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पूरियस कॉस्मेटिक कहेंगे। तो ये रही डेफिनेशन स्पूरियस कॉस्मेटिक की। सेम कंसेप्ट है, जस्ट स्पूरियस ड्रग्स के डेफिनेशन में हमें ड्रग की जगह कॉस्मेटिक रखना है। ये रही डेफिनेशन स्पूरियस कॉस्मेटिक की।